If we do that long enough, either from bats or other animals in such situations, and this one we think went from a bat to a pangolin to a human because of the gene sequence, the lock and key fit happens. And then the virus enters us and uses us as a host. So this is an incredible example of the way evolution by natural selection works. The key doesn't know of the existence of the lock, but it plays around with the lock and key in bats and in other animals, but it doesn't know that it fits beautifully with a human lock. But that chance event is made something certain by us coming close to bats or other such animals constantly. After reports emerged of a second wave of COVID-19 infections, the WHO clarified that the world is witnessing the second peak of the pandemic because the virus hasn't been suppressed enough to quell transmission to end the first wave. Most of the world right now is still very much in the throes of the first wave of this pandemic. Some countries in Europe, in Southeast Asia, North America have been through the peak of a wave of infection and are slowly, carefully making their way out of that situation. The disease has not reached a very low level, maintained a low level, and then come back sometime later in the year. This is possibly in some countries related to reopening of society, remixing of people, and being in a situation without adequate social distancing, without adequate measures in place, and without adequate capacity to isolate, test and isolate suspect cases and quarantine contacts. Virologists in India have zeroed in on many variants of the virus. Literature does not point to any particular mutation that is associated with increased virulence, but there is one particular mutation which is known as the D614G, which leads to reduced S1 protein shedding. You know, it has spike proteins S1 and S2. So it leads to reduced S1 protein shedding, which could be correlated with enhanced infectivity of the virus. Most people infected with the COVID-19 virus experienced mild to moderate respiratory illness and recovered without requiring special treatment. Older people and those with underlying medical problems like cardiovascular disease, diabetes, chronic respiratory disease and cancer developed serious illness. It tends to have a higher chance of a patient dying if it affects the older age group population or people who have chronic morbidity. And interestingly, the way to stop this infection or prevent this infection continues to rely on the same age-old methods which we talk of. It is unfortunate that what we learnt in 2002, how to prevent SARS, was not practiced throughout. What we learnt again when it came to MERS, that we have to follow the similar precautions, we didn't continue to follow. We did it only for a short period of time. And today we are trying to talk to people that they need to adopt the same measures which we had talked about from 2002 for those illnesses. Briefly we changed, but today is the time. We need to ensure that what we have learned today will continue to be practiced over a period of time. We don't forget it. We will ensure that it is practiced. As global novel coronavirus cases continued to rise, WHO sounded an alarm, saying that there would be no return to the old normal in the foreseeable future, with too many countries headed in the wrong direction. If the basics aren't followed, there is only one way this pandemic is going to go. It's going to get worse and worse and worse. We don't need to wait for a new virus to come and teach us the same precautions which, if we would have followed, newer viruses would not have come. If we don't learn lesson from the present pandemic, then I think it will be a real disaster more than the pandemic. The world is learning from pandemics, from adopting sanitation practices to not spitting in open places. But we must learn to adapt faster to be prepared for the next pandemic.
we also need to look inwards to see if our mobility patterns have made us more vulnerable to microbes that evolve 40 million times faster than humans do. The pandemic has left many unanswered questions. Did novel coronavirus begin to spread long before its first cases were reported? Why was there a low infection and death rate from COVID-19 in Japan, South Korea, Taiwan, Hong Kong and Vietnam? What do Twitter trends from across the world indicate about the time of origin of COVID-19? Why are certain countries reporting the bulk of COVID-19 cases? Was there a mystery virus swirling in different parts of the world long before the world took note of COVID-19? Was there any prediction about an unknown pathogen with pandemic potential before novel coronavirus was officially reported? And will the world get to know the truth about the origin of novel coronavirus? BioQuest will return with answers. संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद में आज रात 8:30 बजे होगा पीएम मोदी का भाषण। नॉर्वे के प्रधानमंत्री और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के साथ प्रधानमंत्री समापन सत्र को करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित। कार्यक्रम की थीम है कोविड-19 के बाद बहुपक्षवाद, 75वीं वर्षगांठ पर हमें किस तरह के संयुक्त राष्ट्र की जरूरत। लेह के दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा भारत कोई कमजोर देश नहीं, दुनिया की कोई भी ताकत उसकी 1 इंच जमीन नहीं ले सकती। भारत के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगा देश। देंगे मुंहतोड़ जवाब। चीन के साथ बातचीत जारी, लेकिन कहां तक हल होगा इसकी गारंटी नहीं। लेह में राजनाथ सिंह ने जवानों की शहादत को किया याद, कहा व्यर्थ नहीं जाने देंगे जवानों का बलिदान। जाबाज जवानों के साहसिक हवाई करतब का देखा प्रदर्शन। लेह के बाद श्रीनगर पहुंचे राजनाथ सिंह। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 3 आतंकवादी ढेर, मारा गया जैश कमांडर वलीद नागनंद। चिमर इलाके में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम। भारत अमेरिका के बीच रणनीतिक ऊर्जा भागीदारी मंत्री स्तरीय बैठक आज। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अमेरिकी ऊर्जा मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे बातचीत। बिहार और असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर। असम में बाढ़ और भूस्खलन से 97 से अधिक लोगों की मौत। बिहार में अधिकतर नदियां खतरे के निशान से ऊपर। महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश जारी। और भारत में कोविड-19 की रिकवरी रेट 63.33%। 6,35,000 से अधिक लोग हुए संक्रमण से मुक्त। पूरे गोवा में आज से 3 दिन, जबकि ओडिशा में अधिकतर हिस्सों में आज रात 9 बजे से 14 दिन का पूर्ण लॉकडाउन।
नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की उच्च स्तरीय बैठक के समापन सत्र को वर्चुअली संबोधित करेंगे। पीएम ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी कि वो आज शाम 8:30 बजे आर्थिक और सामाजिक परिषद के उच्च स्तरीय खंड को संबोधित करेंगे। उन्होंने लिखा है कि कोविड-19 के बाद इस वर्ष के बहुपक्षवाद के विषय सहित विभिन्न मुद्दों पर ऐसे समय पर बात होगी जब हम संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित सत्र में पीएम मोदी नॉर्वे के पीएम और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल होंगे। संयुक्त राष्ट्र के इस वार्षिक उच्च स्तरीय सत्र में सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और शिक्षाविदों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों का एक विविध समूह शामिल है। इस वर्ष के सत्र का विषय है कोविड-19 के बाद बहुपक्षवाद, 75वीं वर्षगांठ पर हमें किस तरह के संयुक्त राष्ट्र की आवश्यकता है। भारत शुरू से ही सुरक्षा परिषद में सुधार के साथ ही बहुपक्षवाद का समर्थक रहा है। ऐसे में कोरोना महामारी के कारण बदले हुए हालात में हो रहे इस आयोजन का विषय भारत की प्राथमिकताओं से मेल खाता है। भारत के लिए इस आयोजन का विशेष महत्व है। भारत की सुरक्षा परिषद में जीत के बाद संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री का ये पहला भाषण होगा। इस साल 17 जून को भारत भारी बहुमत के साथ 2 साल के लिए सुरक्षा परिषद का गैर स्थायी सदस्य चुना गया था। पीएम ने इससे पहले जनवरी 2016 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की 70वीं वर्षगांठ पर मुख्य भाषण दिया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समिति ने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के नेता नूर वली महसूद का नाम प्रतिबंधित लोगों और संस्थाओं की सूची में डालने को मंजूरी दे दी है। इसके तहत महसूद की संपत्ति फ्रीज करने के साथ उस पर यात्रा और हथियारों के प्रतिबंध लगाए गए हैं। संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद की 1267 अलकायदा प्रतिबंध समिति ने अपनी ISIL और अलकायदा प्रतिबंध सूची में महसूद को जोड़ा। इस तरह महसूद को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। मुफ्ती नूर वली महसूद को प्रस्ताव 2368 के पैराग्राफ 2 और 4 के अनुसार सूचीबद्ध किया गया है। उसे अलकायदा के लिए वित्तपोषण, योजना बनाना और सुविधाएं प्रदान करने का दोषी पाया गया। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने ट्वीट कर इस फैसले का स्वागत किया। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान में कई आतंकवादी हमले के लिए जिम्मेदार है। सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने नूर वली को आतंकवादी घोषित किया था। TTP पाकिस्तान में कई आत्मघाती हमलों के लिए जिम्मेदार था। अमेरिका ने सितंबर 2019 में नूर वली को देश में आतंकी घोषित किया था। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन के लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। यात्रा के पहले दिन राजनाथ सिंह लेह पहुंचे। रक्षा मंत्री के इस दौरे में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे भी उनके साथ हैं। राजनाथ सिंह ने आज सुबह लद्दाख पहुंचकर सीमावर्ती इलाकों का दौरा किया और लुकुंग चौकी पर जाकर भारतीय सेना के जाबाज जवानों एवं अधिकारियों से मुलाकात की। राजनाथ सिंह ने जवानों के साथ बातचीत की। चीन के साथ सीमा पर चल रहे तनाव के मद्देनजर राजनाथ सिंह सुरक्षा हालात का जायजा लेने के लिए लद्दाख के दौरे पर पहुंचे हैं। राजनाथ सिंह ने पैंगोंग झील के तट पर स्थित लद्दाख में एक अग्रिम सैन्य चौकी पर सेना और ITBP के जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत कोई कमजोर देश नहीं है और दुनिया की कोई भी ताकत उसकी 1 इंच जमीन नहीं ले सकती। भारत का एक सशक्त नेतृत्व है। नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमको मिला है, फैसला लेने वाला, दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रधानमंत्री। हमारे स्वाभिमान पर कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। राष्ट्रीय स्वाभिमान यह हमारी पूंजी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हम अशांति नहीं, शांति चाहते हैं, लेकिन भारत के स्वाभिमान पर यदि चोट पहुंचाने की कोशिश की गई तो हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने सारे विश्व को शांति का संदेश दिया है। भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने कि दुनिया के किसी देश पर न तो कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कभी कब्जा किया है। भारत दुनिया का यह इकलौता देश है जिसने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है,
बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को किसी एक देश ने दिया है तो हमारे और आपके देश भारत ने दिया। हम अशांति नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं। हमारा चरित्र रहा है कि हमने दुनिया के किसी भी देश के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कभी कोशिश नहीं की। लेकिन यह भी मैं कह देना चाहता हूं दो टूक शब्दों में, यदि कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसे किसी भी सूरत पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहेंगे। उन्होंने 15 जून को गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ झड़पों के दौरान भारत के 20 सैन्य कर्मियों की शहादत का जिक्र करते हुए कहा कि हम अपने जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हाल में ही भारत और चीन के जवानों के बीच PP-14 पर जो कुछ भी हुआ उसमें हमारे कुछ जवानों ने अपना बलिदान देते हुए अपनी सीमा की सुरक्षा की है। उनके खोने का गम है, आपसे मिलने की खुशी है। मैं उनकी स्मृति को स्मरण करना चाहता हूं, उनकी स्मृति को नमन करता हूं, उन्हें मैं हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान उनकी शहादत को कभी भूलेगा नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आकर दो टूक शब्दों ने कहा है कि उनकी वह शहादत, उनका वह बलिदान किसी भी सूरत में व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने केवल भारत की सीमा की सुरक्षा नहीं की है, बल्कि भारत के 130 करोड़ भारतवासियों के सम्मान की आपने सुरक्षा की है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में गतिरोध को हल करने के लिए बातचीत चल रही है, लेकिन कहां तक हल होगा इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। इस समय सीमा के विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत का दौर चल रहा है। जो कुछ अब तक की प्रगति हुई है बातचीत की, मामला हल होना चाहिए। लेकिन कहां तक हल होगा अभी इस संबंध में मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूं। लेकिन मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। लेकिन बातचीत के द्वारा यदि समाधान निकलता है तो इससे अच्छी बात और कोई दूसरी नहीं हो सकती है। वह सिलसिला चल रहा है, मिलिट्री लेवल पर भी बातचीत चल रही है, डिप्लोमेटिक बातचीत भी चल रही है। रक्षा मंत्री ने लेह के थिक्सी रामबीरपुर में भारतीय सेना और वायुसेना के बीच समन्वय का प्रदर्शन देखा। रक्षा मंत्री ने जवानों के साथ टैंक पर तस्वीर खिंचवाई और उनका उत्साहवर्धन किया। इसके बाद राजनाथ सिंह पुगोंग त्सू के पास एक अग्रिम पोस्ट लुकुंग के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने सीमावर्ती इलाकों का दौरा किया और लुकुंग चौकी पर जाकर भारतीय सेना के जाबाज जवानों और अधिकारियों से मुलाकात करते हुए उनसे बातचीत की। लद्दाख के दौरे के बाद रक्षा मंत्री फिलहाल श्रीनगर पहुंच गए हैं। यहां उन्हें वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने ताज़ा सुरक्षा हालात की जानकारी ली। वो अमरनाथ यात्रा के बारे में एलजी के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं लेह से रमेश चंद्र। रमेश, पहले बात कर लेते हैं राजनाथ सिंह के जो सुबह उनका जो गतिविधियां रही उस पर हमने देखा कि उन्होंने टैंक पर खड़े होकर भी तस्वीर खिंचवाई और बहुत ही साफ सटीक शब्दों में जो तमाम विरोधी हैं उनको एक कड़ा संदेश दिया। भारत का जो रवैया रहा है उसके बारे में स्पष्ट दो टूक उन्होंने बात कर दी। किस तरह की प्रतिक्रिया आपको देखने सुनने को मिल रही है और क्या कुछ वहां पर आपने महसूस किया कि किस तरह से जवानों के बीच पहुंचकर जो उनका हौसला बढ़ाते हुए नजर आए? वो या जय जी, ये राजनाथ जी का आज का दौरा जो
जब वार्ता भी चल रही है और साथ ही साथ हमारा तैयारी भी मतलब उसी तरह उसी बढ़ चढ़ के जा रही है। अब इस दौरान जो अभी जो राजनाथ जी का, रक्षा मंत्री जी का बिल्कुल फॉरवर्ड पोस्ट पे जाके आर्मी और पैरामिलिट्री के साथ उन्होंने रूबरू किया और बातचीत किया और उन लोगों को संदेश दी और ये क्लियर उन्होंने ये बताया था कि भारत कभी भी अशांति नहीं चाहती है, शांति चाहती है। इसी का हम एक मिसाल देख ही रहे, लगातार डिप्लोमेटिक और आर्मी चैनल्स के थ्रू वार्ता चल रही है। साथ ही साथ उन्होंने, हम उनकी जो भाषण हम ध्यान से सुनेंगे, उन्होंने बहुत साफ शब्द में बोला शांति चाहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है हमारा स्वाभिमान पे कोई चोट पहुंचाए या हमारा जमीन पे कोई आंख उठा के देखे, इसका हम मुंह तोड़ जवाब जरूर देंगे। ये तो क्लियर उन्होंने बिल्कुल फॉरवर्ड पोस्ट पे जाके बॉर्डर पे चाइना के आंख डाल के बताया। ये क्लियर मैसेज है और दुश्मन के लिए जो भी इस हरकतें करेगा तो क्लियर। इसमें दूसरा जो हमें एक चीज और ध्यान से देखनी है, वार्ता अभी जारी रहेगी। एक रक्षा मंत्री ने साफ शब्दों में ये भी कहा दिया, वार्ता जारी रहेगी। इसका दूसरी पहलू में जो है, हम वार्ता चल रहा है इसलिए इसका मतलब नहीं है हम आराम करेंगे जी। तो इस पे दोनों चीजें हम इस पे ध्यान से देखनी है। अभी जो 15 घंटा का जो वार्ता चली 2 दिन पहले तो कोर कमांडर्स के बीच में, इसको हम देखें तो बहुत सारे कंटेंशनल पॉइंट्स है। इसका ये मतलब निकल रहा है तो 15 घंटा का चल रहा है, बातचीत चल रहा है। आप फिंगर 4 से लेके फिंगर 8 तक हम क्लेम कर रहे हैं इंडिया का ही है वो, और फिंगर 4 से उनको रेड लाइन से PLA को हटने के लिए पूरा जो टेम्पररी एस्टेब्लिशमेंट्स है और आर्म अम्युनिशन इक्विपमेंट्स है, जो भी टैंकर्स है, ये सारे हटाने के लिए ये क्लियर हमने PLA को मैसेज दिया है ये 15 घंटे वार्तों में। अगर शायद इसीलिए जो आज रक्षा मंत्री कहने का ये मतलब हम देख सकते हैं, और जो कंटेंशनल पॉइंट्स पे अभी भी कुछ और वार्ता होने की संभावना है जी जी। लेकिन अभी जो अग्रीड पॉइंट्स पे जो हम है, जो टाइम बाउंड मैनर में इन लोगों का यहाँ से जो फ्रिक्शन पॉइंट्स में से अक्रॉस द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल उन लोगों को हटना है। ये टाइम बाउंड मैनर में होना है और इसको वेरीफाइबल इसमें भी देखना चाहिए जी। रमेश, थोड़ा संक्षिप्त में अगर बताएं कि अभी भी जो रक्षा मंत्री है वो LG के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं और क्या कुछ उसको लेकर अपडेट मिल रहा है और आगे का क्या कार्यक्रम रहेगा? हाँ, ये श्रीनगर में हो रहा है। श्रीनगर की वार्ता है ये बात, जो अमरनाथ की यात्रा के बारे में। और यहाँ मेरे पास इतना समाचार नहीं है श्रीनगर से, मैं ले में हूँ जी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त जो रक्षा मंत्री हैं वो लद्दाख के दौरे पर हैं और फिलहाल वो श्रीनगर पहुंच चुके हैं और वहां पर उनकी समीक्षा बैठक जारी है। इस पर हम आपको आगे अपडेट देते रहेंगे। और खबरों में आगे बढ़ें तो जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आज सुबह आतंकवादियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हो गई। खुफिया जानकारी मिली थी कि कुलगाम जिले के नागनद चिमर इलाके के वहां पर कुछ आतंकी छुपे हुए हैं और किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में हैं, जिसके आधार पर इलाके को घेरना शुरू किया गया और सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। एक आतंकवादी की पहचान जैश कमांडर वालिद के रूप में हुई है, जो पाकिस्तानी नागरिक था। वलीद पिछले 1.5 साल से यहां सक्रिय था, जिसकी सुरक्षा बलों को तलाश थी। एक मिलिटेंट का पहचान हुआ जो बहुत फेमस था, जैश का कमांडर वलीद भाई, पाकिस्तान का है और पिछले 1.5 साल से यहाँ एक्टिव है और ये आईडी एक्सपर्ट भी है। अभी तक हमारी इनकाउंटर से 4 बार भागने में कामयाब होगा। रिसेंटली जो इनकाउंटर में भाग गया था उसमें सब पीका गन जो मशीन गन था मिला था उन लोगों को। ये मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था और ये इसके मारे जाने से पुलिस में, सिक्योरिटी फोर्स में एक अच्छी खुशी जाहिर किया है और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जी हाँ, एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर सुरक्षा बलों को मिली। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए DG न्यूज के साथ। बिजली गिरने से जुड़े तथ्यों की जानकारी आपकी जान बचा सकती है। मिथ्या, बिजली केवल सबसे ऊंची वस्तुओं पर प्रहार करती है। तथ्य, बिजली कहीं भी गिर सकती है।
पेड़ों की जगह जमीन पर, खंभों की जगह पास पड़ी कारों पर या इमारत की जगह पार्किंग स्थल पर। मिथ्या, बिजली तूफान के दौरान पेड़ के नीचे आश्रय लेना सुरक्षित है। तथ्य, अगर बिजली पेड़ पर गिरे तो आपको करंट लग सकता है या पेड़ के गिरने से चोट लग सकती है। मिथ्या, रबर के टायर आपको बिजली से सुरक्षित रखते हैं। तथ्य, हर तरफ से बंद वाहन की धातु से बनी सतहें और छत आपको सुरक्षित रखती हैं, रबर टायर नहीं। ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, रिक्शा जैसे खुले वाहन सुरक्षित नहीं हैं। मिथ्या, बिजली से पीड़ित व्यक्ति को छूने से करंट लग सकता है। तथ्य, मानव शरीर बिजली संग्रह नहीं करता। प्राथमिक उपचार देने के लिए बिजली पीड़ित को छूना पूरी तरह से सुरक्षित है। तैयारी में ही समझदारी। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। राजस्थान हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को बागी विधायकों पर फैसला लेने से 5 बजे तक के लिए रोक दिया है। विधानसभा अध्यक्ष ने 19 बागी विधायकों को भेजे नोटिस में आज दिन के 1 बजे तक जवाब देने को कहा था। अब शाम 5 बजे कोर्ट इस मामले की करेगा सुनवाई। दरअसल कल सचिन पायलट ने विधायकों को स्पीकर की ओर से अयोग्य करार देने के संबंधी नोटिस को अदालत में चुनौती दी थी, जिसकी दलील है कि पार्टी का व्हिप सिर्फ तभी लागू होता है जब विधानसभा का सत्र चल रहा हो, जबकि कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत की थी कि विधायकों ने कांग्रेस विधायक दल की बैठकों में भाग लेने के लिए जारी पार्टी के व्हिप की अवमानना की है। इस बीच कांग्रेस ने 2 विधायकों भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह को प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। दोनों पर पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने का आरोप है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज अमेरिका के ऊर्जा मंत्री डैन ब्रोइलेट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दूसरी भारत अमेरिका रणनीतिक ऊर्जा भागीदारी मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। दोनों ही देश आपसी ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देना चाहते हैं। पहले ये बैठक इस साल अप्रैल में वॉशिंगटन में आयोजित होने वाली थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसको स्थगित कर दिया गया था। इससे पहले दोनों नेता बीते बुधवार को उद्योग जगत द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इसमें धर्मेंद्र प्रधान ने अमेरिकी कंपनियों और निवेशकों से भारत में निवेश करने और नई संभावनाएं तलाशने का आमंत्रण दिया था। दोनों देश ने प्राकृतिक गैस क्षेत्र में सहयोग को प्राथमिकता माना है। भारत अपने तेल एवं प्राकृतिक गैस सेक्टर में अगले 5 वर्षों में 118 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के निवेश की उम्मीद कर रहा है। सामरिक ऊर्जा भागीदारी के माध्यम से अमेरिका और भारत भविष्य की चुनौतियों के मद्देनजर सामूहिक रूप से ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है। और राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को 22 जुलाई को राज्यसभा की चैम्बर में शपथ दिलाई जाएगी। कार्यवाही के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा। एक सदस्य के साथ केवल एक व्यक्ति को ही आने की अनुमति होगी। 20 राज्यों से कुल 61 सीटों पर कराए गए थे चुनाव। ऐसा पहली बार होगा कि संसद का सत्र न होने के बावजूद राज्यसभा सदन में शपथ ग्रहण कराया जाएगा। राज्यसभा में सोशल डिस्टेंसिंग के लिहाज से 67 सदस्यों की बैठने की जगह है। इन नए सदस्यों को राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू शपथ दिलाएंगे। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने यह फैसला इस बात को ध्यान में रखते हुए लिया है कि संसद के दोनों सदनों की संसदीय समितियों की बैठक होना शुरू हो चुकी है और इन नए सदस्य इसमें भाग लेने की इच्छा जाहिर की है इन्होंने। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। Carelessness while building a house can prove costly at the time of an earthquake. To avoid any cracks due to an earthquake in a house made of bricks and stones, apply seismic bands at lintel and plinth level, and for houses in zone 5 at sill level also, fix steel bars at every corner and joint. You are safe if your house is safe. Always ensuring your safety. NDMA. ब्रेक के बाद स्वागत है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए गोवा में आज से 3 दिन का पूर्ण लॉकडाउन लागू हो गया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर तकरीबन सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। वहीं प्रदेश में 10 अगस्त तक रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक जनता कर्फ्यू भी जारी है। जनता कर्फ्यू के दौरान सभी गैर जरूरी गतिविधियों के लिए आवाजाही पर पाबंदी लगा दी गई है। गोवा के मुख्यमंत्री ने लोगों से लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने की अपील की है।
और संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद उड़ीसा सरकार ने आज रात 9 बजे से राज्य के कुछ हिस्सों में 14 दिनों के पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित गंजाम, खोर्धा, कटक, जाजपुर जिलों और राउरकेला नगर निगम क्षेत्र में 31 जुलाई की मध्यरात्रि तक पूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। इस दौरान सभी दुकानें, दफ्तर और संस्थान बंद रहेंगे और लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि डाकघरों, दूरसंचार सहित केंद्र सरकार के कुछ कार्यालयों को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है, जबकि हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और बस टर्मिनलों में परिचालन की अनुमति होगी। लॉकडाउन के दौरान दवा, सब्जी, किराने का सामान और दूध बेचने वाली दुकानें सुबह 6 से 1 बजे के बीच खुली रहेंगी। साथ ही खाने पीने की जरूरी चीजों की होम डिलीवरी की अनुमति भी दी गई है। और आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप मॉड्यूल्स हाउसिंग ने कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए मेडिकैब नामक एक पोर्टेबल अस्पताल का निर्माण किया है। इस अस्पताल की खासियत यह है कि इसे कहीं भी महज 2 घंटे में तैयार किया जा सकता है। इसे फोल्ड भी किया जा सकता है और साथ ही इसे आसानी से ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है। मेडिकैब नाम के इस पोर्टेबल अस्पताल के जरिए कोरोना वायरस के मरीजों की जांच, पहचान, आइसोलेशन और इलाज उनके स्थानीय समुदायों के बीच ही किया जा सकता है। इसमें 4 जोन हैं, जिनमें एक डॉक्टर का कमरा, एक आइसोलेशन रूम, एक मेडिकल रूम वार्ड और एक ट्विन बेड आईसीयू है। मेडिकैब की खासियत यह है कि फोल्ड करने के बाद ये वास्तविक आकार का 5वां हिस्सा रह जाता है, जिससे इसके रखरखाव और परिवहन में कम लागत आती है। These are pre-engineered structures that can be set up anywhere and anytime. When COVID-19 struck humanity, team modelers realized that the world needed a much better and faster health infrastructure. Medicab is the first of its kind to be successfully registered under Central Drug Standard Control Organization. It proved its effectiveness to hold the cabin at a negative pressure even on such a hilly terrain. The entire hospital was transported on a single vehicle only. These cabins can be custom built in a factory, and 2 or more such cabins can be gained together to form a bigger intermeshed facility. भारत की युवा शक्ति, बेहतरीन इनोवेशन और नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत शुक्रवार को वाराणसी के सेवापुरी के दौरे पर आए। यहां उन्होंने कई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और सेवापुरी को मॉडल ब्लॉक बनाने पर चर्चा की। बाद में उन्होंने डीडी न्यूज के साथ खास बातचीत में इस योजना पर विस्तार से प्रकाश डाला। हमारे साथ बात करने के लिए हैं नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत जी। अमिताभ कांत जी, सेवापुरी ब्लॉक के गांवों के लिए नीति आयोग की क्या योजना है? देखिए, लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा एक आदर्श ब्लॉक बनाना है, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सब लोग मिलके और जन आंदोलन के साथ यहाँ का विकास करें। तो हम लोगों ने कई स्कीमें बनाई हैं और जितनी भारत सरकार की और स्टेट की स्कीमें हैं सबको मिलाकर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और हमारा लक्ष्य है कि इसको मॉनिटर करें, अच्छी तरह इम्प्लीमेंट करें और यहाँ के लोगों के साथ मिलके जो आज ग्राम पंचायत के सारे नेतृत्व के साथ आज चर्चा की और ऑफिसर्स के साथ चर्चा की, एक बेसलाइन बनाया है और क्या क्या प्रोग्राम को यहाँ पूरा कंप्लीट करना है और क्या टाइम के अंदर करना है, ये सारा चर्चा हुई है और इसको हम लोग आगे ले जाएंगे। एक मॉडल ब्लॉक की तरह इसको हम लोग यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी इसमें जो है कितना वक्त लग सकता है और कितना खर्च आने की संभावना? नहीं, हम लोग तो भारत सरकार की सारी स्कीम लगाएंगे और जल्दी से जल्दी इसको कार्यक्रम को खत्म करेंगे। कैमरा पर्सन डॉक्टर अजय वर्मा के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, सेवापुरी, वाराणसी। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्राधिकरण ने पार्क में 2 साल के एक मादा बाघ को रिहा कर दिया है, जिसे मंगलवार को बरनडुब्बी इलाके में पकड़ा गया था। ये 2 साल का बाघ अपने एक और साथी के साथ जंगल से बाहर सुरक्षित स्थानों की तलाश में निकला था, जिसे ग्रामीण द्वारा क्षेत्रों में देखा गया था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्राधिकरण ने बाघ को बचाव शिविर में ले जाने का फैसला किया और उसका उपचार करने के बाद उसे रिहा कर दिया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन आप 2 गज की दूरी बनाए रखें, अपने मुंह को हमेशा ढक कर रखें। डीडी न्यूज के साथ इसी तरह जुड़े रहिए। नमस्कार।
DD Free Dish.